be the change that you want to see. सो आई थिंक वो जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से आपको लोगों के साथ डील Right. कैसे करते हैं ये शायद Right. आ गया समझ. Weddings are the most Correct. running thing in our country, especially in our country, I would हाँ. say. मुझे एक कॉल नहीं करना पड़ता, मुझे 3 कॉल करने पड़ते हैं एक काम कराने के लिए. तो बहुत चीज़ों में सोच बदल गई है लोगों की. Or a wedding actually which breaks all the stereotypes. I would say no wedding is perfect without its imperfection. आजकल के कपल्स है ना समझने लगे हैं चीज़ें कि लेस इज मोर. हमारे इंडिया में जिस तरह की शादियां होती हैं शायद ही कहीं होती होंगी और इन शादियों की तैयारियों में उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है. यू गेस्ड इट राइट. आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी वेडिंग प्लानर से जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा शादियां करवाई हैं और बहुत सारे हैप्पी मेमोरेबल और ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट किए हैं. Let's welcome the famous wedding planner and the owner of Niche Events, Priyal Mehta Bharatiya. Hello, Priyal. Hi. Welcome to my pod talk. Hi, thank you for having me. How are you doing today? I'm good, thank you so much. Okay. हमें बताइए वेडिंग प्लानिंग जैसा प्रोफेशन आपने क्यों चुना? Okay, starting with when I was young. ये मैं बात कर रही हूँ not when I was in my 20s. I was actually in my teens. I had read this somewhere. Be the change that you want to see. अच्छा. So when I say this, I was like, it touched my heart. And again, we were in that era of life. ये मैं मेरे दादा पर दादा के ज़माने की बात कर रही हूँ जहाँ women को we were not given that kind of stand, mark, respect for what they were doing. अच्छा. I had decided that I want to be that change. Also, somewhere an inspiration to other women in the society. And I wanted to have my own individuality and that mark in the society. That's when I decided that something that I could serve people, something that would make my soul and me happy is what I want to do. And slowly, steadily, I think चीज़ें कैसे अपने आप रोल होती गई वो पता भी नहीं चला. But having said that, I come from a joint family. अच्छा. And seeing so many colors, so many cultures, so many different people, but coming together and staying with each other Right. is something made me that, I think I'm made for this. अच्छा. So, सो आई थिंक वो जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से आपको लोगों के साथ डील Right. कैसे करते हैं ये शायद Right. आ गया समझ. right. तो लेकिन आपका ये पैशन वेडिंग प्लानिंग की तरफ कैसे बढ़ा? So I still remember in 2013, I had done a small wedding of 150 to 200 people. That's when actually my career started. ओके. When I saw that in the end, मतलब शादी के एंड में जब वो ब्राइड एंड ग्रूम मंडप पे पहुंचते हैं, when I saw that hundreds of people, that happiness in them, the tears of joy, the satisfaction in their heart is something that touched my soul, and I was ready to do this for life. And that became my passion of you spreading that happiness. And in the end kuch bhi bhale ho, but I saw that that's the moment and that's where everyone just surrenders and they are happy with each other, especially the bride and groom. Yes. And the family also, of course. राइट. तो जस्ट वॉक अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेडिंग प्लानिंग. कैसे होती है? Okay, so I will not say it's very simple, but firstly, I would suggest, and I would say not because I'm a wedding planner, but to have a wedding planner on board. अच्छा. At least अब आजकल तो शादियाँ 8 महीने से 1 साल पहले शुरू हो जाती है प्लानिंग प्रोसेस. हाँ. सो फर्स्ट यू फाइंड योर वेन्यू, यू डिसाइड वेयर यू वांट टू गेट मैरिड, वेदर डेस्टिनेशन है बॉम्बे है यहाँ स्टेकेशन है, you decide that. After which, once you have your planner on board, you decide on other things. That is your guest list, what kind of functions you want, what are your priorities in terms of हर एक function में कितने लोग चाहिए,
then your decor, then your entertainment, all these are departments that you start noting it down. And that is why nowadays that we see that every bride has a to-do list. And that to-do list is given by a planner somewhere to the bride and the groom and the family, so they know that where are we headed. Because डेट फिक्स करना टाइम नहीं लगता है, वो हो जाता है, ब्राइड एंड ग्रूम हो जाते हैं, बट ये प्रोसेस कहाँ 8 महीने से शुरू की हुई प्लानिंग एंड वो दिन आ भी जाता है, वो पता नहीं चलता है. हाँ. एग्जीक्यूशन टेक्स 2 days, दैट इज मतलब मेहंदी, संगीत, हल्दी, वेडिंग, रिसेप्शन हो जाता है, पता भी नहीं चलता, बट वो एक प्लानिंग है जिसको टाइम लगता है. हाँ. बट वेडिंग प्लानिंग एक कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले था नहीं, बहुत रिसेंटली आया, नहीं तो लोग या घर वाले ही मिलके शादियां कराया करते थे. तो सडनली ये प्रोफेशन कैसे बन गया? सो अगेन ऐसा नहीं कि रिसेंटली आया है, बट येस आफ्टर कोविड इट हैज़ टेकन अ पीक in this industry in itself. Whether we see news, whether every year का अगर normally GDP भी निकाल दे, weddings are the most running thing in our country, especially in our country, I would say. They have understood, even the families, bride and groom, they know about it, but even the families have understood that having a professional, but who can understand the wavelength, who can understand emotions of our families, who can get both the families together as well as the bride and groom, and for that you require a wedding planner. Of course, वो wedding planner ऐसा नहीं है कि खाली bride and groom को, he will listen to just the two of them or the families. They do a lot of back-end work as well. But because you should take a back seat as a family and as a bride and groom on the days of the wedding is why you should have a wedding planner. So that you can enjoy what you have always dreamt of. Otherwise, what's the point? तैयारियों में लगे रहते हो and तो then क्या you can't point है? enjoy Yeah. the wedding, right? तो हमें बताइए, एक कपल को अपने बजट के हिसाब से वेडिंग कैसे करनी चाहिए? सो अगेन इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पहले तो प्रायोरिटाइज कीजिए. ठीक है. आपके लिए मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? लोग इंडिया में शादी इसलिए करते हैं कहीं ना कहीं जो उनके इतने सालों से बनाए हुए रिलेशंस, ऑफ कोर्स उनको बुलाना है और सभी को बुलाना है. सो पहले तो आप वेन्यू, गेस्ट लिस्ट, और एक्चुअली पहले तो आप गेस्ट लिस्ट ही बनाइए, बिकॉज गेस्ट लिस्ट के हिसाब से ही आपका वेन्यू डिसाइड होगा. आजकल अगर आपको बॉम्बे में शादी करनी है, जो भी 5 स्टार्स आप देख लो, इट्स क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी. सो अगर आपकी गेस्ट लिस्ट तैयार होगी, आपको अंदाज़ा आ जाएगा हाउ मच डू आई वांट टू स्पेंड. करेक्ट. एंड देन अकॉर्डिंगली आप ईच फंक्शन के लिए वो बजट बना सकते हैं. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर प्लानिंग. ठीक है. एंड प्रायोरिटाइजिंग. सो या सो आपके हिसाब से व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट कपल्स मेक ड्यूरिंग द वेडिंग प्लानिंग? मिस्टेक इज़ अ लिटिल नेगेटिव वर्ड. अच्छा. तो मैं मिस्टेक नहीं बोलूँगी, बिकॉज हर एक कपल के लिए, उनके लिए वो एक्सपीरियंस पहली बार है, नया है. मोस्ट कॉमनली क्या हो जाता है पता है, पहले कपल मतलब स्पेशली इन अ लव मैरिज एक दूसरे को ही जानते हैं और एक दूसरे में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं. बात तभी आती है जब फैमिलीज इन्वॉल्व होती है. सो वो बहुत ही ओवरवेलमिंग प्रोसेस हो जाता है अपने आप में ही. ठीक है. और उसमें क्या हो जाता है, बिकॉज पीपल आर इन्वॉल्व, मोर एंड मोर पीपल आर इन्वॉल्व. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग श्योर कि हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए और ऐसा ही करना है, they start getting a little more nervous. Especially the brides. बिकॉज एक तो उनको वो प्रोसेस जो मायके से लेके ससुराल तक जाना है, वही उनके लिए इट्स समथिंग कि वो लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. और उसके बाद अगर आप उनको बोलो नहीं ऐसा भी करना है, नहीं ये भी करना है, सो उनको एक्चुअली क्या चाहिए वो तो पता ही नहीं है. एंड इन दी एंड वो कन्फ्यूजन लीड्स टू little emotional stress, anxiety. So what I would suggest is आपको पता है आपको क्या चाहिए, just focus on that and let the planner do the needful. or your family. करेक्ट. सो वेडिंग प्लानिंग में आप वेंडर्स के साथ कैसे डील करते हैं टू मेक श्योर कि सब कुछ स्मूथली रन हो? Vendors, they play a very very major and a big role in our wedding industry, because आप आज
like giving you a small instance which is a funny instance also. हम लोगों ने एक दूल्हे के लिए घोड़ी बुक की थी. नॉर्मली महाराष्ट्रियन वेडिंग्स में घोड़ी बुक होती है, घोड़ा कभी बुक होता नहीं है, ठीक है. सो वो घोड़ी के बदले घोड़ा आ गया. ओह ओके. So I will of course not say the name of the bride and groom, but वो घोड़ी के बदले घोड़ा आ गया. Now this is a tricky situation कि क्या किया जाए. ये end minute है, right? Of course can't do anything about it. So हम लोगों ने वो घोड़ी के मतलब वो घोड़ी को घोड़ी के कपड़े पहना दिए. ओके. So these are the ways we are challenged by vendors, but at the same time we want in our weddings कि हमारे vendors हो. So उनके साथ communication, उनके साथ वो comfort level आज अलग ही होता है. So it's better to have your own vendors to deal with on the day of the execution. हाँ, Otherwise ये क्योंकि- घोड़ी घोड़ा वाला सीन हो सकता है. ये तो बहुत ही small example था. करेक्ट. ये जो आपने बताया, इसके अलावा और लास्ट मिनट चेंजेस आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ ऑफ अ वेडिंग जहाँ मेकअप आर्टिस्ट को ये डिसाइड करना था कि मुझे वेडिंग में जाना है या किसी की डेथ फ्यूनरल पे. ओह गॉड. एंड माई ब्राइड इज़ वेटिंग. ओके, इट्स अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट. शी इज़ वेटिंग, शी इज़ थिंकिंग कि कब आएगी कब आएगी. नहीं आई. लाइक 8 बजे की संगीत है एंड इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock. 2 घंटे लगते हैं एक ब्राइड को रेडी होने में. एट दैट टाइम वी अंडरस्टूड कि ये कहीं नहीं जा रहा है. एज प्लानर्स वी डिसाइडेड दैट जो साइडर्स मेकअप आर्टिस्ट थी, जो उनकी मॉम की या बहन की, वी टोल्ड हर प्लीज़ यू डू द नीडफुल. बट एवरी थिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज़ टू बी डन विद अ लॉट ऑफ ग्रेस एंड स्माइल. मतलब हमारे मुंह पे शिकन नहीं आनी चाहिए. बिकॉज हम लोग अगर हिल गए, इट्स लाइक वो ट्रेन की पटरी की तरह, हम लोग हिल गए तो फिर वो ट्रेन भी नहीं आगे जाएगी. हाँ. So at that time, of course, it's a panic situation for the bride, but if done with a lot of calm, things can go smooth. या सो वेडिंग प्लानर को उतना स्मार्ट और एफिशिएंट होना चाहिए बेसिकली कि Yes. ऐसी सिचुएशंस को वो कैसे कैसे हैंडल handle, करें. yes, yes. राइट. आपने बहुत सारी सिटीज़ में वेडिंग्स की हैं, तो कुछ डिफरेंसेस बताइए, कहाँ पे क्या होता है? So Mumbai, honestly, I love doing weddings here. Okay. It's my hometown, right? So इधर हर एक चीज़ ऐसे ही लाइक ऑन कॉल हो जाती है. ऑफ कोर्स अदर सिटीज़ में चैलेंजेस उनके खुद के होते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट नोइंग पीपल देयर दैट आल्सो बिकम्स लाइक योर कंफर्ट लेवल. सो जैसे अभी मैं बात करूँ, जयपुर है, ठीक है, दिल्ली आप ले लो, और गोवा, उधर के वेंडर्स बहुत अलग अलग है. मतलब एक फ्लोरिस्ट एक प्रोडक्शन टीम से पूरा अलग है. हाँ. सो उनको मुझे एक कॉल नहीं करना पड़ता, मुझे 3 कॉल करने पड़ते हैं एक काम कराने के लिए. राइट. वेर एज इन बॉम्बे मुझे एक कॉल पे मेरा सब काम हो जाता है. दैट्स द डिफरेंस व्हाट यू सी इन डिफरेंट सिटीज़, दैट यू हैव टू गो अ स्टेप फॉरवर्ड जब आप दूसरी शहरों में शादियाँ करते हो, बिकॉज उधर के प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशन सब अलग है. राइट. और इधर मे से. बी यहाँ के लोगों को आप अच्छे से जानते होगे मे बी, तो वो भी एक रीज़न है. सो इवन इन गोवा वी नो पीपल, बट अभी कैसा है कि उधर दे हैव द यूनियन फॉर टैक्सीज. अच्छा. इधर ऐसा कुछ नहीं है. उधर अगर आप शादी करते हो तो आपको उनकी ही टैक्सीज यूज़ करनी पड़ती है. वैसा है, यू कैन नॉट हैव योर ओन कार्स. ओके. सो मतलब हर एक शहर का एक अलग प्रोटोकॉल yes. और एक अलग प्रॉब्लम या व्हाटएवर यू कैन से हो सकता है. वाओ. सो आपको क्या ज़्यादा पसंद है, मुंबई या सिटी में, या स्मॉल टाउन वेडिंग्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स? अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इंटीमेट वेडिंग्स. ओके. लाइक समथिंग लाइक जैसे आलिया और रणवीर ने की थी. इट वॉज वेरी इंटीमेट, वेरी पर्सनलाइज, समथिंग जो खाली ब्राइड एंड ग्रूम को कनेक्ट करता है. सो अ वेडिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और अ वेडिंग एक्चुअली विच ब्रेक्स ऑल द स्टीरियोटाइप्स. गिविंग एन एग्जाम्पल, मैंने 2 साल पहले एक शादी की थी जहाँ कन्यादान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. अच्छा. जहाँ ग्रूम ने भी सिंदूर लगाया था.
Oh God. Okay. because he believed कि why a kanya is leaving, she's not going anywhere. Where are we, what in what world are we staying? We are so ahead of time Correct. now that she will apply सिंदूर but so will I. Right. मुझे कन्यादान की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं घर छोड़ के किधर भी नहीं जा रही हूँ, ये मेरा दूसरा घर है जहाँ मैं सेटल होने जा रही हूँ. Right. हमारे पास लेडी पंडित थी. Oh. Okay. So such weddings really connects with me. तो बहुत चीज़ों में सोच बदल गई है लोगों की, Right. और जो बहुत अच्छी बात है. सो बेसिकली इंटरकास्ट वेडिंग्स होती हैं जब बहुत अलग फैमिलीज़ होती हैं और लोग अलग होते हैं, उनके कल्चर्स अलग होते हैं, उन सबको एक साथ लाना, उन सब की वेडिंग्स में आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको क्या पसंद आता है? आपने जो बात मुझे बोली कि वो जो चैलेंज होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बिकॉज Okay. दे आर सो डिफरेंट, लाइक हाँ. बोथ द फैमिलीज, डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स बोल दो आप, ऑफ कोर्स डिफरेंट तरीके पैसे खर्च करने के. राइट. नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू स्पेंड ऑन डेकोर दैट मच. करेक्ट. किसी को सेलिब्रिटी बुला के परफॉर्म नहीं करना है, बट ये जो बीच का चैलेंज होता है, जो समझना कि कैसे कर सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट इज वेडिंग एंड वेडिंग प्लानिंग. सो या बट यूजुअली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको इस तरह की वेडिंग्स करने में? सो जब बोथ द पार्टीज, बोथ द फैमिलीज आर मतलब अड़ जाती है एक चीज़ पे, हमें ऐसा ही चाहिए, बट दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पाते हैं. बोले कैसे? बिकॉज रिलेशंस है, बहुत ट्रिकी होते, बहुत सेंसिटिव होते, तो कैसे कम्युनिकेट किया जाए? सो दैट्स वेयर दे कम टू अस. गिविंग एन एग्जाम्पल, मुझे ये आर्टिस्ट फॉरेन ही चाहिए. मुझे नहीं लगता है प्रियल ये आर्टिस्ट फॉरेन होना ज़रूरी है अपने रिसेप्शन में. क्यों कर रहे हैं हम लोग? अब मैं कैसे समझाने जाऊँ कि हम लोग डिसीजन मेकर्स नहीं है, डिसीजन मेकर्स आप हो, राइट? सो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स वो स्पार्क क्रिएट करती है दोनों फैमिलीज़ में भी, ब्राइड एंड ग्रूम में भी, जहाँ ब्राइड एंड ग्रूम का कोई लेना देना नहीं होता. करेक्ट. बट व्हेन दैट स्पार्क अराइजेस, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम्स एंड दैट्स वेयर द चैलेंजेस, एंड फिर आप कैसे उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हो. ओके. सो प्रियल बताइए, व्हाट आर द बिगेस्ट वेडिंग ट्रेंड्स दैट यू आर सीइंग नाउडेज? So in the last few years, what I have envisioned, पहले बोला जाता था कि लड़कियां लाल लहंगा ही पहननी चाहिए शादी में. हाँ. Seeing today's trend, we've seen that बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी है जो लाल जोड़ा नहीं पहन रही है. हाँ. It's ivory, it's gold, it's beige, and that is something that you see a change. In itself, it's a trend. जैसे अगेन मैं बोलूँगी, आलिया भट्ट ने अपनी खुद की शादी में लाल लहंगा नहीं पहना था, बट स्टिल शी वॉज लुकिंग दैट एलिगेंट, दैट पॉइज, एंड शी जस्ट स्लेड इट, राइट? एंड nowadays I've seen a lot many of my brides also जो लाल लहंगा नहीं पहनना चाहती. Pastel colors. Pastel, या light yes, colors, yes, something which is more them. Again, another thing is आजकल के कपल्स है ना, समझने लगे हैं चीज़ें कि लेस इज़ मोर. सब कुछ बड़ा दिखाने के लिए या बड़ा करने के लिए शादी नहीं करनी है. शादी हम दोनों की है, हम दोनों को हमारे हिसाब से करनी है. सो व्हेन आई से लेस इज़ मोर इज़ दैट डजंट मीन के डेकोर खाली एक एक कोने में होगा, बट जो डेकोर भी होगा वो काफ़ी पर्सनलाइज्ड होगा. ओके. उनके नाम के हिसाब से होगा, उनके लोगों के हिसाब से होगा. उनका जो टच है वो आप हर एक चीज़ों में देखोगे, जैसे एंटरटेनमेंट से लेके, डेकोर से लेके, लोगो डिज़ाइन से लेके, इन एवरीथिंग you will feel that now the wedding is not for the guest, it's for them. So that's something that we are seeing a trend in, and an intimate weddings. Of course COVID ने बहुत हेल्प किया है, बिकॉज कोविड के टाइम पे ओनली 50 या 70 लोगों की वेडिंग्स होती थी, और उसके बाद पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग to have your own people is more important, and to enjoy. इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी एक शादियाँ नहीं होती है, होती है, but now these are the trends lately. So yeah. या सो या बड़ी शादियाँ होती हैं अगर आपके रिश्तेदार ज़्यादा हैं या
लोग ज़्यादा हैं तो या आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द फ्यूचर इन इन प्लानिंग वेडिंग्स? ऐसी कुछ चीज़ आपको लगता है कि फ्यूचर में वेडिंग्स में आने वाली है या आनी चाहिए? This is a very, very good question. Also, I would say, I wouldn't say आनी चाहिए because आ गई है ओके or somewhere on the verge of, but understanding, artificial intelligence, understanding today's science technology, there could be a time and period जहाँ ब्राइड एंड ग्रूम को लिटरली अपनी शादी वो खुद घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं, विजुलाइज कर यस, पाएंगे लाइक right? लिटरली कर सकते हाँ, हैं कि okay. उनको पता है ये ऐसा ही होगा और ये ऐसे ही दिखेंगे, Correct. और वो प्रोसेस वी ऑल नो कैन कम एनी टाइम, सो दैट कुड बी द बिगेस्ट थिंग, दैट Yeah. कुड बी अ गेम चेंजर. राइट तो प्रियल हमें बताइए कि जब अलग अलग टाइप के वेदर्स में वेडिंग्स होती हैं, समर में, विंटर में, रेनी सीजन में, तब क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? सो पहले मैं स्टार्ट करूँगी बिकॉज इधर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं. सो पहले मैं स्टार्ट करूँगी मुहूर्त वेडिंग्स. ओके पूरे साल में मुहूर्त निकलते हैं, ठीक है. हाँ जी. मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो विथ मुहूर्त ओनली, क्योंकि वो ऑस्पिशियस होता है, जी. हमें उसी टाइम पे करनी है, राइट. और वो सबसे ज़्यादा सीज़न होता है नवंबर से लेके फरवरी मैक्स मार्च तक. और जब वो सीज़न आता है तब सब लोग एक साल पहले ही, जैसे लॉटरी की टिकट कैसे बट रही हो वैसे ही दे स्टार्ट बुकिंग थिंग्स, हाँ. बिकॉज अदरवाइज वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा हो जाता है. अगर Right. आपको किधर शादी करनी है पर वो बुकड है तो मतलब ही नहीं है. सो दैट्स मुहूर्त वेडिंग वेयर मोस्ट ऑफ द वेडिंग्स Happen. उसी टाइम पे Right. होती है. ओके दूसरी टाइप की वेडिंग्स ये होती है जो आपके बजटेड भी होती है, जो लोगों को मुहूर्त में नहीं इतना बिलीव करते हैं एंड विदाउट मुहूर्त भी करते हैं. उसमें उन लोग के लिए क्या बेस्ट हो जाता है कि जो भी चाहिए उनको अवेलेबल मिलता है, अपने बजट में मिलता है, एंड दे आर ओके विथ दैट काइंड ऑफ वेडिंग विच दे कैन कॉल मोर पीपल, एन्जॉय, एंड अपने बजट में हो जाती है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ वेडिंग्स जो आजकल मतलब 2 सीज़न से तो मैं देख रही हूँ, जुलाई में भी वेडिंग स्टार्ट हो गई है, अगस्त में भी हो रही है, जो कि रेनी सीज़न है. अब इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं कि आप कोई भी वो वेन्यू चूज़ ही नहीं कर सकते हो जो आउटडोर्स है, बिकॉज कहाँ बारिश, जाओगे अगर. और अब अभी तो ऐसा हो गया है कि दिसंबर में भी हो सकती है, बट ये तो वी नो दैट जून टू सितंबर, समटाइम्स अक्टूबर ऑल्सो देर आर रेन्स. सो उस टाइम पे वो चैलेंज रहता है कि भाई वैसे ही लोकेशन ढूंढ लो जहाँ आप इंडोर वेडिंग्स करो. करेक्ट. सो दिस इज़ वन चैलेंज. अगेन सबको कैसा होता है कि एक होटल में मुझे वही सेम बैंक्वेट में मैं अपने 2 फंक्शन 3 फंक्शन करूँगा या करूँगी तो कैसा लगेगा. मेरे सब गेस्ट वही बोलेंगे अरे सेम ही वेन्यू लिया. अगेन अ चैलेंज. सो दीज आर ऑल द पर्क्स ऑफ डूइंग ड्यूरिंग मुहूर्त, नॉन मुहूर्त एंड रेनी सीजन. करेक्ट. सो ये सब चैलेंजेस के बाहर भी आपको सोच के, क्योंकि अगेन व्हेन आई सेड फैमिलीज अपने बारे में कम सोचती है, लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, हम ये सब गेस्ट को बुला रहे हैं क्या लगेगा उस बारे में ज़्यादा सोचती है, बिकॉज वेडिंग्स ही उनके लिए यू नो टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड, दैट स्टेटस इन द सोसाइटी करेक्ट मैटर्स. राइट. तो या मतलब अलग अलग सीजन के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं आई एम श्योर. एंड ग्रेट. आई थिंक इन सब से डील करना ही बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा काम है. सो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. प्रियल बताइए व्हाट इज़ द वन वेडिंग मिथ और मिसकंसेप्शन दैट यू वुड लाइक टू डिस्पेल? Okay, so there is this one myth that a wedding is perfect if it is perfect. I would say no wedding is perfect without its imperfection. राइट. क्या याद रखोगे जब imperfections ही नहीं होंगे. मैं डिज़ास्टर नहीं बोलूँगी, डिज़ास्टर और imperfections में बहुत डिफरेंस है. राइट. बट वो शादी ही नहीं है जो imperfect नहीं है. आप क्या याद रखोगे, 2 महीने 3 महीने शादी के बाद वही चीज़ें ना जो
कुछ ना कुछ फनी tricky- इंसिडेंट हो गया जैसे था ये या घोड़ी कुछ- घोड़े का हुआ या और Right. यू नो बार पे अगर यू नो किसी ने ज़्यादा ही लगा ली एंड ही इज़ डूइंग समथिंग विच इज़ मेमोरेबल अगेन हाँ, हाँ। सो वो सब चीज़ों के लिए अ वेडिंग इज़ परफेक्ट ओनली विथ इट्स इम्परफेक्शन राइट और वेडिंग्स में लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच वन हैज़ टू लुक इन टू खाना हो गया कपड़े हो गए मेकअप हो गया डेकोर हो गया तो आपको सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगता है और क्या इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज लोग तो 2 मिनट में खाना खा के कमेंट कर देते हैं यू नो ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है तो आप क्या क्या टेक है इन सब चीज़ों के बारे में मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ऑनेस्टली मेरे ब्राइड एंड ग्रूम हैं अच्छा ऑफ कोर्स उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज नॉट जस्ट गेस वो तो वेडिंग्स में हो गए बट इन जनरल भी आप कुछ भी करोगे लोग अपने ओपिनियंस तो देने ही वाले हैं तो शादी अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है करेक्ट सो लोगों के ओपिनियंस तो ऐसे भी आते ही हैं बट वॉट मैटर्स द मोस्ट इज व्हेन आई सी दोज टू सोल्स मंडप पे यू नो with that smile, with that feeling that now we are together forever, and with so many months of planning and anxiety and so much. And उसके बाद when I see both of them ना, वो जब वो वरमाला होता है ना, हाँ I feel it's done. It's That's done, my yeah. best moment of my life. Yeah, that's great. Um, is there anything that you would like to tell us about the weddings के क्या होना चाहिए आपके हिसाब से weddings में जो छोटी चीज़ें जो लोग जिस चीज़ को इतना समझ नहीं पाते but which is very important according to you from a wedding planner point of view. So first I would say to make this a little light that to have a wedding planner if it's me. Another thing at most important भले कितनी भी बड़ी या छोटी शादी हो आपके लिए वो फर्स्ट टाइम है आपके लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है एन्जॉय एवरी मोमेंट इन दिस एंटायर प्रोसेस ना आप अपने आप को भूल जाते हो आप एन्जॉय करना भूल जाते हो आप वो जो पल है ऑनेस्टली जो जीने के लिए वो आप ख़त्म कर देते हो एंड जब शादी हो जाती है यू को लाइक ख़त्म भी हो गई और मैंने अभी तक एन्जॉय भी नहीं किया सो I would advise all my brides and groom and the other brides and groom and their families that enjoy that moment because वो वापस नहीं आ रहे हैं. हाँ. So yeah. Thank you for giving your insights on the wedding planning and weddings in India in general. Thank you so much for coming on my pod talk and sharing your experience with us. My pleasure, Ekta. Thank you so much. So, दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात वेडिंग प्लानर प्रियल मेहता भारतीय के साथ जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया हमारी इंडियन वेडिंग्स के छोटे छोटे इंसिडेंट्स के बारे में. आपको हमारा ये कॉन्वर्सेशन ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉड टॉक विद एकता. थैंक यू.